Good morning, students. Now, our next chapter is chapter 6, Introduction to Flash CS6. Now, the question is why we use Flash. Flash is used for uh, cartoon animations to make exciting animations. So, what is animation? An animation is a simulation of movement created by displaying a series of picture or frames. Basically, हम लोग animations किस पे देते हैं? Objects पे, images पे. तो जैसे आप लोग कार्टून फिल्म्स देखते हैं तो वो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीडियो एंड एनिमेशन फिल्म्स? Video is a continuous process, continuous motion, but in animation start with independent picture and push them together to form the illusion of continuous motion. उसके ऊपर आप continuous motion डालते हैं और एक के बाद एक आप कार्टून फिल्म्स में नए नए ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने अकॉर्डिंग टू स्टोरी आते रहते हैं. इंट्रोडक्शन टू फ्लैश. एडोब फ्लैश, popularly known as Flash, is a multimedia graphic software is used to create interactive animated. So what are the steps to start the Flash? Click on start all programs. Adobe Flash Professional 6s6. Next point is create a new section. Click on action script option. The Flash window will be open and your Flash window is divided into different parts. There are different parts: menu bar, title bar, tools panel, stage of movie area. Stage of movie area जहाँ पर कि आप पिक्चर को एनिमेट करेंगे. लाइब्रेरी पैनल जहाँ पर कि आपको बहुत सारी लाइब्रेरी मीन्स जहाँ पर कुछ टूल्स स्टोर होते हैं वो हमें मिलते हैं. कलर पैनल जहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट में अपने यूज़ कर सकते हैं. एंड प्रॉपर्टी विंडो मतलब ऑब्जेक्ट को आप कितना छोटा कर सकते हैं, उसकी हाइट, विड्थ, कलर, बैकग्राउंड, ये सब हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं. मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैश आर मेन्यू बार फॉर एग्जांपल फाइल, एडिट, इंसर्ट एंड हेल्प. एडिट बार डिस्प्ले द करंट सीन नंबर, जो भी आप सीन क्रिएट कर रहे हैं उसका करंट नंबर. एडिट सीन बटन, एडिट सिंबल and zoom control. Toolbar, there are a number of tools. Work area where you can insert an image and apply different animations or colors, etc. Timeline means how much time you want to display this animated object. Panels contain controls of viewing and changing the property of object. आप ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाएंगे, आप ऊपर से जंप करते दिखा रहे हैं या किस मोशन में उसको दिखा रहे हैं, तो पैनल्स में जाएंगे. प्रॉपर्टी, easy access to most common attributes of currently selected tools. And stage, the stage is the white area at the center of window. It is where the flash movie are created. Then how to save your flash file? First click on file menu, then select save as option. Save as dialog option appear. Then write down the file name in the location and click on save button. Text box overview. These are the tools which we use in Flash. First is selection tool. Selection tool is used most commonly to select and move an item or multiple item on the stage. It is also used to edit lines shape in a way that is familiar to users who have worked in other vector graphics. Means selection tool क्या करता है? selection tools हम लोग बहुत सारे आइटम्स या एक सिंगल आइटम को एक साथ सेलेक्ट करके उसको उसकी पोजीशन है, उसका एनिमेशन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. अगर उसमें कोई शेप आपको चेंज करना है तो आप शेप भी चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ सिलेक्शन टूल. Next is sub-selection tool. Sub-selection tool is the companion for the pen and is found in the tools panel to right of the selection tool. The sub-selection tool has two purposes: to either move or edit individual anchor points or tangents on lines and outlines. मीन्स लाइन्स को सेलेक्ट करके आप वन बाय वन उसको एडजस्ट कर सकते हैं. मान लीजिए कोई फिगर है, उस फिगर को जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करी, उसको ड्रैग करके आपने कुछ चेंजेस करे. सेकेंड लाइन सेलेक्ट करी, उसको आपने सेलेक्ट करके चेंजेस करे. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सब सेलेक्शन टूल. When you position the sub selection tool over a line or point, the hollow circle cursor displays on one of the state. When over a line, it displays a small filled square. जब आप लाइन के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे तो वो एक फील्ड स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और आप
ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं। और व्हेन ओवर अ पॉइंट इट डिस्प्ले अ स्मॉल हॉलो स्क्वायर, मीन्स एक खाली सर्कल स्क्वायर बन जाएगा, सिर्फ आउटलाइन बनकर आ जाएगी। उससे भी आप मैटर को सेलेक्ट करके विल बी मूव टू चेंज द शेप ऑफ द लाइन, आप उस लाइन की शेप को चेंज कर सकते हैं। लैसो टूल, लैसो टूल बेसिकली यूज फॉर नॉन रेगुलर शेप्ड, जो रेगुलर शेप्ड नहीं होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए लैसो टूल यूज़ किया जाता है। देन लाइन टूल, जैसे आप पेंट में यूज़ करते थे कि लाइन टूल को यूज़ करके आप वन बाय वन जो भी स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइन टूल इज़ यूज फॉर स्ट्रेट लाइन्स, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। देन पेंसिल टूल, जैसे आप पेंसिल आप चलाते हैं अपनी कॉपी पे या पेंसिल पे या आर्ट बनाते हैं पेंसिल से, तो सेम एज पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ free form strokes on the stage, similar to the way you draw using a regular pencil on a regular sheet of paper। जैसे आप पेपर पे डिज़ाइन बनाते हैं वैसे ही इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पेन टूल। Pen tool is used to create a complex shape consisting of a lot of perfect arcs. Arcs means half circle or this type, and a lot of perfect straight lines. जब आप पर्टिकुलर शेप को आप बनाने स्टार्ट कर देते हैं, उसको परमानेंटली आपने स्टार्ट कर दिया है बनाना, तो हम पेन टूल को यूज़ करते हैं। तो पेन टूल हमारी लाइन को परफेक्ट कर देती है। और एक जैसे आप पेन से ब्लैक पेन से स्केच बनाते हैं वैसे ये भी यहाँ पर भी पेन टूल वर्क करता है। ओवल टूल, ड्राइंग द ओवल टूल क्रिएट्स अ परफेक्ट स्मूथ ओवल्स एंड सर्कल्स। ओवल टूल का यूज़ किया जाता है सर्कल्स और ओवल्स को बनाने के लिए। अगर आप ओवल टूल को बना रहे हैं तो आप शिफ्ट की को यूज़ करके और सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर विदाउट शिफ्ट की करते हैं तो ओवल शेप बनेगा, अगर विद शिफ्ट की करते हैं तो वो हमें सर्कल बना कर दे देता है। Same as rectangle tool, if you want to create a square, then press shift key and rectangular tool, it's draw the square, and without shift key it is used to draw the rectangle area. So this is called rectangular tool. Then brush tool, ब्रश टूल जैसे आप आर्ट में यूज़ करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ब्रशेस, 0 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 4 नंबर, तो सेम इज हेयर। ब्रश टूल इज़ यूज टू क्रिएट स्मूथ और tapered marks, unlike the pencil tool which creates marks with a single row of anchor points. The brush tool actually creates marks by using filled shape. आप जब ब्रश को कलर के लिए यूज़ करते हैं सेम एज यहाँ पर भी ब्रश को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। जब इरेजर टूल मीन्स टू इरेज समथिंग, टू रब समथिंग, तो आप किसी आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और अब आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या इरेज करना चाहते हैं, तब हम इरेजर टूल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक इरेजर टूल, तो आपके सामने शेप्स ऑफ इरेजर्स आ जाएंगे, सबसे छोटा उससे बड़ा। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ इरेजर्स हमारे सामने आ जाते हैं जिनको यूज़ करके हम शेप्स को इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग द इरेजर मोड ऑप्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल इरेज नॉर्मल, जो नॉर्मल इरेज़र हमको मिलती है उस इरेज़र को यूज़ करके हम इरेज करते हैं। इरेज फिल्स, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को फिल कलर से फिल कर दिया तो उसको इरेज करने के लिए इरेज फिल इरेज़र यूज़ करेंगे। इरेज लाइंस, लाइंस को इरेज करने के लिए इरेज सेलेक्टेड फिल्स, जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वो उतने ही पोर्शन को इरेज कर देगा। इरेज इनसाइड, जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा उसके जो अंदर का पोर्शन है, इनर पोर्शन है, उसको इरेज करने के लिए इरेज इनसाइड। यूजिंग इफेक्ट ऑप्शन to remove stroke segments or filled area, select the eraser tool and then click on facet modifier, click the stroke segment or filled area that you want to delete। आपको डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग द इरेजर शेप ऑप्शन, in the option listed at the bottom of toolbar there are number of shapes। number of shapes मतलब आपके पास छोटा इरेजर, उससे बड़ा, तो इस तरह से साइज़ के अकॉर्डिंग हमको इरेजर्स मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ यूज दिस ऑप्शन टू कस्टमाइज द साइज एंड लुक ऑफ द इरेजर। नेक्स्ट इज इंक बॉटल टूल। इंक बॉटल टूल जहाँ पर कि हमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, तो द इंक बॉटल टूल लेट्स यू चेंज द स्ट्रोक कलर्स। स्ट्रोक कलर्स, जैसे आपने कोई लाइन बना दी या कोई आपने अल्फ़ाबेट लिखा, तो
तो strokes, line width and styles of lines or shape outlines. Using the ink bottle rather than selecting individual lines and objects make it easier to change the strokes attribute to multiple objects. आपने सिंगल पोर्शन को सेलेक्ट करा, आपने सिंगल लाइन सेलेक्ट करी या सिंगल स्ट्रोक को सेलेक्ट कर दिया, सिंगल अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर जब आपको कलर करना है तो हम इंक बॉटल टूल्स को यूज़ करते हैं. पेंट बकेट टूल, पेंट बकेट जैसे अब नाम से ही पता लग रहा है, पेंट बकेट मीन्स एक हमको जहाँ पर बहुत सारा कलर मिलता है, तो इट इज़ यूज टू फिल द एनक्लोज्ड एरिया विद कलर. मीन्स आप जो फिल्ड एरिया आपने बनाया हुआ है उसको कलर करने के लिए इट कैन बोथ फिल एम्प्टी एरियाज एंड change the color of already painted areas. You can paint with solid colors, gradient fills and bitmaps. आप डॉट्स बना सकते हैं, पूरा कलर फिल कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से ही कलर्ड था आप उसको फिर से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पेंट बकेट टूल. And then first of all select the object and then select paint bucket tool. Our cursor is there, then select the color and click on the selected object. So these are the steps to adjust the gradient and bitmap. Select the paint bucket tool, click the transform fill, click the an area filled with gradient or bitmap fill. So these are the tools of Flash.